Hello children, welcome once again to my channel Smita Classes. Today I will be dealing with the SST book of Standard 6. The name of the book is Social Science Success, and we have already done 3 chapters of history of this book, 2 chapters of civics and 1 chapter of geography. Today we will be dealing with we have done 4 chapters of history, and today we will be doing the 5th chapter of history of this book. We will be doing the first part of 5th chapter. The name of the chapter is Different Ways of Life, the Vedic Period. The name of the book is Social Science Success of Standard 6, and the name of the 5th chapter is Different Ways of Life, the Vedic Period. We learned in the previous lesson how historians learn about the past from written sources also. Among the oldest literary sources are the 4 Vedas composed by the Aryans in Sanskrit. The Aryans came in from the northwest towards the middle of the 2nd millennium BC, that is 1500 BC. The Vedic age gets its name from the 4 Vedas. The Vedas, the word Veda means knowledge. They contain hymns sung in praise of various gods and goddesses. The Vedas were not written down, they were recited, and the listeners learned them by heart and passed them on to the next generation. That is, the Vedas were heard, Shruti, and then memorized, Smriti. It was much later they were written down. They are the main source of history for the period between 1500 BC to 600 BC. The Rig Veda is the oldest Veda. It gives a vivid picture of the early Vedic period. The other 3 Vedas are Samved, the Yajurved, and the Atharved. These Vedas laid the foundation of the Hindu way of life and beliefs of Hindu religion. Vedic age is also termed as the age of epics. The 2 great epics, the Ramayana and the Mahabharata, and the Upanishads were also written during this time. The Rig Veda contains 1028 hymns. These hymns are in praise of various gods, Indra, Agni, Varuna, and many others. The Rig Veda is divided into 10 mandals or books and is written in Vedic Sanskrit. It was composed 3500 years ago. The Samveda, the Yajurveda, and the Atharvaveda were composed later. Together they contain about 21,000 verses. The Vedic period can be divided into 2 periods, the early Vedic period 1500 BC to 1000 BC and the later Vedic period 1000 BC to 600 BC. The manuscript of the Rig Veda was written on birch bark. It was found in Kashmir about 150 years ago. It is preserved in a library in Pune, Maharashtra. Some of the hymns of Rig Veda are written in the form of a dialogue. They tell us about the cattle, horses, and chariots used, the battles fought. They also tell us why battles were fought for land, for cattle, for slaves or dasas. देखिए, हम लोगों ने इसके पहले के भी चैप्टर में पढ़ा है कि हिस्टोरियन जो है, इतिहासकार है, जो कि हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, वो पहले के समय में, पास्ट के समय के बारे में कैसे जानते हैं। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स से कि पॉटरी से, वो सब की मदद से जानते हैं। जो बड़े बड़े इमारतें रह गई हैं पहले की, पैलेसेस रह गए हैं, या जो पॉटरी का सामान ज़मीन के नीचे से मिलता है, वो सबसे जान पाते हैं। साथ ही साथ कुछ लिटरेरी सोर्सेज भी एक टाइम का है, मतलब लिखा हुआ रिटर्न सोर्सेज भी है किसी टाइम का, जिसके थ्रू वो जान पाते हैं पास्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पुराना लिखा सोर्सेज, देखिए बहुत पहले तो लिखा नहीं जाता था, ओरली लोग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंच जाते थे। बहुत दिन बाद वो लिखा जाने लगा। तो सबसे पुराना लिटरेरी सोर्स, लिखा हुआ सोर्स क्या है हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, वो है 4 वेद, जो कि किन लोगों ने बनाए थे। ऐसे तो वेद बोलते हैं कि ऋषि लोग जो मोटिवेशन देते थे उससे लोग लिखे थे। तो वो जो 4 वेद है वो आर्यंस ने बनाए थे, संस्कृत में उसको लिखा था। हाँ, लिखने का काम उन लोगों ने किया था। ऑल्दो उनके पहले से वो सीखते आ रहे थे, लिखने का काम वो आर्यंस ने किया था संस्कृत में 4 वेदों को। ठीक है, आर्यंस देखिए ओरिजिनली इंडिया के नहीं थे। आर्यंस जो थे वो नॉर्थ वेस्ट के तरफ से आए थे, मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान के पीछे और है, अफ़गानिस्तान, ईरान, है ना, उस तरफ से आए थे आर्यन सब इंडिया की तरफ, है ना। और कब आए थे? 2nd मिलेनियम में के मिडिल में। 2nd मिलेनियम क्या है? 1500 BC के समय आए थे वो लोग, यानी क्राइस्ट के जन्म के 1500 साल पहले वो लोग आए थे आर्यन लोग इंडिया में। फिर इंडिया में ही वो बस के रह गए। ठीक है, तो उन लोगों ने ये वेद के बारे में सुना, याद किया और फिर उसको उन्होंने लिख दिया। ठीक है, तो वैदिक एज का नाम इन 4 वेदों से ही होता है। हिस्ट्री में देखिए अलग अलग एज है ना, मॉडर्न इंडिया, एंशंट इंडिया, वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड गया, वैदिक एज जो है वो इन 4 वेदों के कारण ही उसका नाम वैदिक पीरियड पड़ा। ठीक है,
अब ये जो वेद है, वेद का डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढेंगे तो वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है नॉलेज, है ना, ज्ञान, नॉलेज। वो वेद में क्या लिखा हुआ है? उसमें भजन लिखे हुए हैं, हिम्स जो कहते हैं, भजन लिखे हुए हैं। किसके बारे में? देवी देवताओं की प्रशंसा करते हुए भजन लिखे हुए, श्लोक के रूप में भजन लिखे हुए, देवी देवताओं की प्रशंसा करते हुए। ठीक है, पहले के समय में ऋषि लोग वेद, भगवान से प्रेरणा मिलता था और ऋषि के मुंह से वेद निकलता था, गुरुओं के मुंह से, और उनको लिखा नहीं जाता था पहले के समय में। ठीक है, वो ऋषि लोग अपने स्टूडेंट्स को गुरुकुल में बोल बोल के सिखाते थे, स्टूडेंट्स भी सुन सुन के सीखते थे और फिर याद कर लेते थे, बाई हार्ट याद कर लेते थे। फिर वो स्टूडेंट्स लोग जब नेक्स्ट जनरेशन को ऐसे ही सिखाते थे, वो लोग जब गुरु बनते थे और फिर वो बोल बोल के सिखाते थे नेक्स्ट जनरेशन को, नेक्स्ट पीढ़ी के बच्चों को, और वो बच्चे भी उससे बाय हार्ट याद कर लेते थे। यानी दो प्रोसेस होता था। वेदास वर हर्ड श्रुति, श्रुति मतलब सुनना, कान से सुनना। एक आप लोगों ने सुना है ना, श्रुति लेख बोलते हैं। श्रुति लेख क्या होता है? डिक्टेशन होता है। डिक्टेशन क्या होता है? आप सुनेंगे, मैम ने बोला कि वृक्ष लिखो, है ना, वृक्ष स्पेलिंग लिखो, तो आपने सुना, श्रुति किया आपने, फिर उसको लिखा, तो श्रुति लेख। ठीक है, तो श्रुति का मतलब है कि सुनना, उसी से श्रोता वर्ड भी आया है, जो गुड लिसनर होता है उसे श्रोता कहते हैं। ठीक है, तो वेदास को लोग सुनते थे स्टूडेंट सब, और फिर उसको स्मृति में रखते थे, अपने मेमोरी में रखते थे। कैसे? मेमोराइज करके, लर्न करके, याद करके उसको अपने स्मृति में रखते थे, अपने मेमोरी में रखते थे। ठीक है, तो इस तरह जो है पहले से, बहुत साल पहले से वेद था, वेद पास होते होते जा रहा था, पर जब आर्यंस आए उस वक्त उन्होंने उन वेदों को लिख दिया। ठीक है, तो जब उस समय की हिस्ट्री है, जब आर्यंस ने उन्हें लिखा है, तो उस समय की जो हिस्ट्री है 1500 BC से 600 BC, माने क्राइस्ट के जन्म के 1500 से 600 साल के बीच की जो क्राइस्ट के जन्म के 600 साल और क्राइस्ट के जन्म के 1500 साल पहले, जन्म के पहले की बात बोल रहे हो, उसके बीच का जो टाइम है, उसकी हिस्ट्री के बारे में हमको जानकारी कैसे मिलती है? यही वेद के थ्रू। वेद जो लिखा हुआ है वो हमें लिखा हुआ मिल गया सोर्सेस, तो इसीलिए उस बीच की हिस्ट्री की हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, और ये सब किस में लिखा हुआ है? ये सारे वेद सब जो हैं ये संस्कृत में लिखे हुए हैं। सबसे पहले जो वेद आया था, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, उससे पूरा बहुत अच्छे से वो बताता है कि अर्ली वैदिक पीरियड कैसा था, उसमें पूरा कुछ बताया हुआ है कि सबसे शुरुआत में वैदिक पीरियड कैसा था। ठीक है, बाकी 3 वेद जो है उनका क्या नाम है? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ठीक है, ये वेद फाउंडेशन दिए हैं हिंदू रिलीजन का। ठीक है, ये वेद बताए हैं कि हिंदू रिलीजन में जिस तरह से जो लोग मानते हैं कि हाँ ऐसे पूजा करनी चाहिए, ऐसे जीवन जीना चाहिए, हाँ जो हिंदू लोगों की वे ऑफ लाइफ है, किस तरह से वह जीते हैं, या उनका जो विश्वास है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा लिविंग लाइफ होना चाहिए। ठीक है, तो हिंदू रिलीजन का जो विश्वास है एंड वे ऑफ लिविंग है, ठीक है, वो सब की नींव है, वो सब का फाउंडेशन इस वेद में है। मतलब ये वेद जो है, मान लीजिए एक हिंदू शादी हो रही है, उसमें एक रस्म निभाई गई, तो वो रस्म क्यों की जाती है, वो चीज़ इस वेद में बताया गया है कि आखिर हर एक जो तरीका से हम लोग जी रहे हैं वो क्यों किया जा रहा है, उसका पूरा साइंटिफिक तरीके से समझाया गया है वेद में कि उसका क्या ज़रूरत है उसको करने का। ठीक है, तो हिंदू वे ऑफ लाइफ और बिलीफ्स जो है, हिंदू के जीवन जीने का ढंग और उनका जो विश्वास है हिंदू रिलीजन का, उसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज इसमें दिया गया है वेदों में। ठीक है, ये वैदिक एज का जो समय था, जब वेद के बारे में लोग पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, ठीक है, उस समय 2 बड़े बड़े एपिक्स भी लिखे गए, 2 बड़े बड़े महागाथाएं भी लिखी गई। ठीक है, वो क्या थे? रामायण और महाभारत थे, बड़ी बड़ी महागाथाएं लिखी गई। और एक क्या लिखा गया उस समय? उपनिषद भी। ठीक है, उसी समय उपनिषद भी लिखा गया है ना। आप जानते हैं कि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा था और जो महाभारत है वेद व्यास जी ने लिखा। ठीक है, वो सुनते गए ऋषियों के मुँह से और उसे लिखते गए। अब ये जो ऋग्वेद है, जो कि सबसे पुराना वेद है, ठीक है, उसमें
1028 हिम्स हैं, यानी 1028 भजन हैं उसमें, ठीक है। और ये सारे भजन क्या हैं, देवी देवताओं की प्रशंसा में गाए गए हैं। कैसे भगवान के, इंद्र भगवान की प्रशंसा में, अग्नि भगवान, वरुण भगवान जो हैं, है ना, पवन देव जो, इनकी प्रशंसा में भजन गाए गए हैं, ठीक है। अब जो ये ऋग्वेद है उसको 10 मंडल या बुक में डिवीज़न किया गया है, यानी कि जैसे अभी हम लोग एक कोई बुक खरीदते हैं, आर.डी. शर्मा मैथ्स की बुक अगर हम खरीदें तो उसका 3 वॉल्यूम है, क्लास 11th में है ना, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 ऐसा होता है ना। उसी तरह ऋग्वेद को 10 अलग अलग बुक्स में डिवाइड किया गया था, जिसको कि मंडल्स बोलते थे। 10 मंडल्स है उसके, ठीक है। और किस लैंग्वेज में लिखा गया, वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में। उस समय जो वैदिक संस्कृत था उस लैंग्वेज में लिखा गया है। और ऋग्वेद कब बना है आप जानते हैं, 3500 ईयर्स पहले। कितना पुराना है, 3500 साल पहले में लिखा गया है ऋग्वेद। और ये जो सामवेद, यजुर कंपोज किया गया, लिखना तो खैर बाद में ही हुआ, उसको 1500 BC में पहुंच के उसको लिखा गया, पर वो शुरू से था ऋग्वेद, ठीक है। और ये जो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है उनको बाद में बनाया गया, ठीक है। तो ये तीनों जो है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उसमें 21,000 वर्सेस है, ठीक है, माने कि 21,000 उसमें श्लोक लिखे हुए हैं। अब है कि वैदिक पीरियड को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है अर्ली वैदिक पीरियड और एक लेटर वैदिक पीरियड। एक बाद का वैदिक पीरियड है, पहले का वैदिक पीरियड। जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो कब से है, 1500 BC से 1000 BC पे है। और जो लेटर वैदिक पीरियड है वो कब है, वो 1000 BC से 600 BC तक, क्राइस्ट के जन्म के 1000 साल पहले से 600 साल पहले तक। और पहला वाला है 1500 साल पहले के, क्राइस्ट के जन्म के 1500 साल पहले से 1000 जन्म तक, ठीक है। अब जो है उस समय तो ये वेद बने थे, ठीक है, फिर लिखे गए। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ऋग्वेद का, मतलब कि ऋग्वेद जिसमें लिखा गया है, जो सबसे शुरुआत में जो लिखा गया है ऋग्वेद को, वो किस चीज़ पे लिखाया गया है। उसमें पेपर का तो इन्वेंशन हुआ नहीं था, तो बर्च बार्क, एक बर्च ट्री होता है, उसकी जो छाल होती है उसके ट्रंक का, उसके छाल को, पतला छाल को निकाला गया और उसमें लिखा गया है उस ऋग्वेद के बारे में, उसके श्लोक्स को संस्कृत में लिखा गया है। और ये कहाँ मिला था, यह 150 ईयर्स के पहले कश्मीर में मिला है। यानी ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो ओरिजिनल उसका रिटर्न फॉर्म है वो कब मिला, 150 ईयर्स पहले कश्मीर में कहीं पे मिला हुआ है। अब उसको अच्छे से सहेज के कहाँ गया, रखा गया, पूना में एक लाइब्रेरी है, उसमें उसको रखा गया है। महाराष्ट्र में पूना है, पूना में एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे उसको अच्छे से रखा गया है, वो जो बर्च पेपर पे लिखा हुआ ऋग्वेद है, ठीक है। अब कुछ कुछ जो भजन है ऋग्वेद में उसको डायलॉग के फॉर्म में लिखा गया है, जैसे कि 2 लोग बातें कर रहे हैं उस तरीके से लिखा गया है, ठीक है, डायलॉग्स के फॉर्म में। तो जैसे कि कोई ऋषि अपने गुरु से पूछ रहा है, कोई शिष्य गुरु से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, गुरु आंसर दे रहे, इस तरीके से लिखा गया है। तो वो जो ऋग्वेद में जो लिखा गया है उसमें क्या बताया जाता है, कैटल, हॉर्सेस, चैरियट्स, है ना, गाय बछड़ों के बारे में बताया जा रहा है, घोड़ों के बारे में बताया जा रहा है, रथ जो यूज़ कर रहे हैं उसमें वो बताया गया है, फिर क्या क्या लड़ाइयाँ हुई वो भी बताया जा रहा है। और वो ये भी बताया जा रहा है कि उस वक्त लड़ाइयाँ क्यों होती थी, ज़मीन के लिए होती थी, पशुओं के लिए होती थी, या गुलाम के लिए, स्लेव्स या दास जो होते हैं उनके लिए युद्ध लड़े जाते थे पहले के समय में, ठीक है। तो वो सब कुछ ऋग्वेद में बताया गया, मतलब लाइफ बताया गया कि किस तरह से लोग लाइफ जी रहे थे, वो बताया गया है। The early Vedic period. The early Vedic period is also known as the Rig Vedic period. The people of the early Vedic period were semi-nomadic. They moved their settlements from one pastoral area to another. They domesticated cattle and other farm animals. Cattle was their main source of livelihood. Cattle plowed the land and provided them with milk, butter and ghee. What are Vedas? Recording of sages to whom hymns were revealed. Veda is derived from the root Ved, which means to know. Vedas teach us how to achieve purity of heart and get rid of vices. Vedic period 1500 BC to 600 BC. Early Vedic period 1500 BC to 1000 BC. Later Vedic period 1000 BC to 600 BC.
The Aryans migrated to the Indian subcontinent in large groups through the Khyber Pass. They rapidly spread in the area known as Sapt Sindhu, the land of 7 rivers. The Aryans soon adopted agriculture after settling down in small communities. They cultivated the land by means of plows driven by bulls and oxen. They grew barley and used vessels and implements made of copper. Cow was considered a sign of prosperity. In fact, a man's wealth was determined by the number of cows he owned. The Aryans introduced the horse in India from Central Asia. Horses were used to draw chariots. Later, the horse became a very important religious symbol when Ashwamedh sacrifices were performed. ठीक है, तो ये जो अर्ली वैदिक पीरियड है, जिसको कि ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं, उस समय के लोग सेमी नोमैडिक थे, माने आधे बंजारे थे। नोमैड या पूरे बंजारे क्या होते हैं? जो जगह जगह घूमते हैं, अपने सारे फैमिली को लेके चले जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ पे गाय भैंस के खाने की जगह है जहाँ पे घास वास है, कुछ दिन वहाँ रहेंगे, वहाँ पे जानवर खाते पीते हैं, वहाँ कुछ दिन एग्रीकल्चर करेंगे, फिर वो जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे। ठीक है, पर ये लोग सेमी नोमैडिक थे, मतलब कि ये आधे बंजारे थे, बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर शिफ्ट नहीं करते थे। ठीक है, वो अपने सेटलमेंट में मूव करते थे, है ना, एक जगह जहाँ रह गए वो सब मिलके उठ के दूसरे पेस्टोरल एरिया में चले जाते थे, मतलब जहाँ पे चरने की जगह हो, घास वास पेड़ पौधे बहुत हो, जहाँ गाय बछड़े खा सके। ठीक है, तो वैसी जगह पे चले जाते थे वो लोग भी उठ के, कुछ मान लीजिए 1 साल यहाँ रहे फिर उठ के दूसरी जगह पे गए, ऐसे करते थे। वो लोग पशुओं को पालते थे, डोमेस्टिकेट करते थे, और दूसरे फार्म एनिमल्स को भी, जैसे गाय भैंस बैल, ये सबको वो लोग पालते थे। उनका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या था? गाय था। ठीक है, गाय से ही उनका जीवन चलता था, गाय का दूध पीते थे, गाय के दूध का प्रोडक्ट्स बना के खाते थे, इस तरीके से। ठीक है, और जो बैल थे या ऑक्स थे वो उनकी ज़मीन को प्लॉ करते थे, मतलब खेतों में हल चलाने के काम आते थे, और गाय से उन्हें मिल्क बटर और घी मिलता था। ठीक है, अब अगर पूछेंगे कि वेदास क्या है, तो वेदास क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ सेजेस टू होम हिम्स वर रिवील्ड, है ना। ऋषियों को जो है जितने भजन पता थे कि जीवन जीने का कैसा होना चाहिए, जो वो भजन थे वो ऋषियों ने मुंह के थ्रू दूसरे अपने शिष्यों को सिखाया था, ओरली बोल बोल के, तो उसी का रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग मैंने क्या, उसको लिखा गया है एक पेपर में, वही है वेद। पेपर तो नहीं, बर्च पेपर पे, बर्च बार्क पे लिखा गया है, यानी सेजेस ने जो मुंह से कहा उसे लिखा गया है, वही वेद है। वेद का किस वर्ड से बना है? विद और विद वर्ड से बना है। रूट वर्ड उसका क्या है? विद है। विद का मतलब है जानना, कोई चीज़ जानना, इंफॉर्मेशन पाना, तो उसी से वेद बना है। वेद क्यों बनाया गया? वेद हम लोग को सिखाते हैं कि कैसे हमारा हृदय शुद्ध हो, है ना, हमारे मन से द्वेष ईर्ष्या सब निकल जाए, हमारा हृदय शुद्ध हो, और हमारे मन से, हमारे शरीर से सारी मतलब बुरी चीज़ें बाहर निकल जाए। जो हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष रहता है, ईर्ष्या रहती है, या बुरी भावना होती है, वो भावना हमारे मन से निकल जाए, वही वेद हमें सिखाते हैं। ठीक है, अब ये जो आर्यंस लोग हैं वो लोग कहाँ से आए थे? इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं इंडिया को, क्योंकि इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट का एक छोटा पार्ट है ना, इसलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो आर्यंस लोग जो हैं बड़े बड़े ग्रुप्स में आए थे, किधर से? नॉर्थ वेस्ट की तरफ से, मैंने बताया था ना, ईरान वगैरह के साइड से आर्यंस लोग आए थे। और कहाँ से? खाइबर पास। देखिए पहाड़ों में ना जो घाटियाँ होती हैं वहाँ पे पतले पतले रास्ते बनाए जाते हैं, ताकि जो है मिट्टी के कच्चे रास्ते होते हैं जहाँ से लोग चल चल के आते हैं पहाड़ों के बीच बीच से, उन्हें पासेस कहते हैं। तो वैसे ही एक पास वहाँ हिमालयाज़ के पास है, वो है खाइबर पास। ठीक है, तो ये जो आर्यन लोग थे वो लोग ईरान के साइड से आ रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आ रहे हैं, वो लोग वो खाइबर पास को पार करके वो इंडिया में एंटर किए थे। ठीक है, फिर वो लोग जैसे ही इंडिया में आए वो इधर उधर बिखर गए। वहाँ पे जो एक एरिया है नॉर्थ में इंडिया में, सप्त सिंधु जिसको कहते हैं, कि जहाँ 7 नदियाँ बहती हैं, उसके पास का एरिया जो है लैंड ऑफ 7 रिवर्स, वहीं पे वो बिखर गए और ग्रुप्स में रहने लगे। ठीक है, बहुत सारे लोग आए थे, उन लोगों ने तुरंत खेती बाड़ी अपना ली, एग्रीकल्चर को अडॉप्ट कर लिया, और छोटे छोटे कम्युनिटी में हर जगह सेटल हो गए। मतलब 10 फैमिलीज़ एक ग्रुप में रह के एक जगह रहने लगे, 10 फैमिली दूसरी जगह, इस तरीके से। ठीक है, स्मॉल कम्युनिटीज़ में वो लोग खेतों की जुताई कैसे करते थे, खेतों की मिट्टी को में हल कैसे चलाते थे, तो वो जो है उनके जो हल कौन चलाते थे, ये जो जितने भी
बैल और ऑक्स है ना, बुल्स और ऑक्सेस जो हैं वो लोग चलाते थे। ठीक है, जो गाय का जो मेल पार्ट है बुल, मेल पार्टनर जो है बुल, और जो भैंस के मेल पार्टनर है ऑक्स सब जो हैं, ठीक है, वो लोग खेतों में हल चलाते थे। ठीक है, और उस समय लोग क्या उगाते थे, बार्ली मेन उनका प्रोडक्ट था, जो बार्ली उगाते थे। और वो लोग जो बर्तन यूज़ करते थे, वेसल्स यूज़ करते थे वो, और जो औजार यूज़ करते थे खेतों में, कुदाल वगैरह यूज़ कर रहे थे, वो सब क्या चीज़ के बने हुए थे, कॉपर के बने हुए थे। गाय जो था, गाय को लोग समृद्धि का सूचक मानते थे कि नहीं, जिसके पास धन दौलत है उसके पास बहुत सारा गाय है, जिसके पास बहुत सारा गाय है, कैटल है, गाय भेड़ बकरियां जिसके पास ज़्यादा है, वो एक उसका घर में अच्छे से पैसा है, वो वेल्दी पर्सन है, वो अच्छे से आराम से रह रहा है, ऐसा वो लोग मानते थे। एक मनुष्य कितना रिच है वो माना जाता था, उसके पास जितने गाय बछड़े हैं उसके हिसाब से माना जाता था। आर्यंस लोग जो है हॉर्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किए। हॉर्स इंडिया में पहले नहीं था, घोड़ा। आर्यंस अपने साथ सेंट्रल एशिया से, एशिया के मिडिल से वो लोग जब आए इंडिया में, वो लोग घोड़े लेकर आए। ठीक है, तो घोड़ों की मदद से क्या करते थे, इंडिया में रथ चलाना शुरू हुआ, रथों को घोड़े खींचते थे। धीरे धीरे करके कि घोड़े बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गए। क्यों, रिलीजियस सिंबल बन गए, है ना, धर्म के वो पूरा सूचक बन गए, धर्म का सिंबल बन गए। कैसे, क्योंकि राजा लोग जो थे वो लोग अश्वमेध यज्ञ करने लगे। ठीक है, और यश अश्वमेध यज्ञ करके वो क्या करते थे, घोड़े को अलग अलग राज्यों में घुमाते थे, और अगर किसी राज्य के राजा ने उसे रोक लिया तो उससे वो पहले वाले राजा को युद्ध करना पड़ता था। तो इस तरह वो घोड़ों को घुमाते थे सारे राज्यों में, और सारे राज्यों के राजा अगर चुपचाप उन घोड़ों को घूमने दे तो इसका मतलब है कि वो पहले राजा के अंडर में है ये सारे राज्य। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता था, जो है अश्वमेध में यज्ञ के बाद क्या होता था, सैक्रिफाइस किया जाता था, बलि चढ़ाया जाता था। ठीक है, तो इस तरह घोड़े भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस सिंबल बन गए, घोड़े धर्म को सिंबलाइज करने लगे। तो इस तरह से आर्यंस आए थे। ये जो है आपका ये 5th चैप्टर हम लोग कर रहे थे, इसके हम लोगों ने पार्ट 1 को कर लिया है, जल्दी हम लोग इसके पार्ट 2 को करेंगे, और आई होप पार्ट 2 या पार्ट 3 भी करना पड़ेगा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा। और ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग हिस्ट्री के 6th चैप्टर को आएंगे। आप ये क्लास 6 के वीडियोस को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ खूब सारे शेयर करें, और सारे अपने फ्रेंड्स को बोले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल में और नए नए बहुत सारे वीडियोस आएंगे जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।